Students, today we are going to start next chapter. Its name is nuclei. Okay, nuclei ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਟਮ। ਐਟਮ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਇੰਟਾਇਰ ਮਾਸ ਆਫ ਐਟਮ ਇਜ਼ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ ਐਟ ਇਟਸ ਸੈਂਟਰ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ ਆ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਅਤੇ ਮਾਸ ਵੀ ਐਟਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 99.9% ਮਾਸ ਆਫ ਐਟਮ ਕਿੱਥੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਐਟਮ। ਐਟਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਜੀ, 10⁻⁻10 ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, 10⁻⁻10 ਮੀਟਰ। ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ 10⁻⁻15 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਲਫਾ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੂਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਰੂਮ ਕੀ ਆ, ਐਟਮ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਪੱਗ ਦੀ ਟਰਬਨ ਦੀ ਪਿੰਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੋਏਗਾ ਪਿੰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ, ਠੀਕ ਆ, ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਟਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 9th ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ +1 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਠੀਕ ਆ। ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 1/12 ਦ ਮਾਸ ਆਫ 1/12 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ। ਓਕੇ, ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਆਫ 1 ਐਟਮ ਆਫ ਕਾਰਬਨ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ, ਮਾਸ ਆਫ 1 ਐਟਮ। ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ। ਸੋ 1 ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, 1/12 ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ 1/12 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 12 ਕਾਰਬਨ ਆ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਨੂੰ ਜੇ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, 1 ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋਲ ਕੰਸੈਪਟ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਸ ਆਫ 1 ਐਟਮ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਇਨ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1.660539 × 10⁻27 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਸੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਾਸ ਸਪੈਕਟਰੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸਟਰਕਚਰ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸਟਰਕਚਰ ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪਲੱਸ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੋਨਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਨਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਨਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪਲੱਸ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 1.6 × 10⁻19 ਕੂਲਮ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਸਮਾਲ ਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਇਨ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 1.6726 × 10⁻27 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 1.00727 ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ। ਅਤੇ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ, 1H1। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇੱਕੋ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਨਿਊਟਰੋਨ। ਨਿਊਟਰੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 0 ਕੂਲਮ। ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 1.6749 × 10⁻27 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਾਲੋਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਬਟ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੈਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਉਹਦਾ, 1.00866 ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਿੰਬਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ 0N1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, 1 ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ 1 ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, -1.6 × 10⁻12 ਕੂਲਮ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, -E ਲਿਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ।
मास कितना होंदा इलैक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो अप्रॉक्सीमेटली मास कि कोल होंदा एटॉमिक मास यूनिट की टर्म च कितना होंदा 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है जी। नैक्सट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इनसाइड न्यूक्लियस का देखो न्यूक्लियस कोल किहड़ा चार्ज होंदा आपां हमेशा प्लस लिखते हैं ना सेंटर च पॉजिटिव चार्ज होंदा न्यूक्लियस कोल किवें क्यों होंदा क्योंकि जिहड़ा न्यूक्लियस आ उहदे इनसाइड की होंदे ने प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। हुण न्यूट्रॉन ते कोई चार्ज हैगा नहीं है सो इहदा चार्ज काहदा करके होएगा न्यूक्लियस का प्रोटॉन का करके होएगा। प्रोटॉन ते किहड़ा होंदा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। एटम जिहड़ा होंदा तुहाडा इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल होंदा जिन्ना पॉजिटिव चार्ज आ उन्ना ही होएगा नैगेटिव चार्ज होगा एटम न्यूट्रल होंदा तुहाडा। ठीक है। नैक्सट चार्ज ऑन न्यूक्लियस। मान लो जो मैं चार्ज दसा भी न्यूक्लियस ते कितना चार्ज है। ठीक है। तो किवें दसांगे आपां हुण देखो एक प्रोटोन ते कितना चार्ज अपने कोल ई आ प्लस ई। हुण किन्ने प्रोटोन आ न्यूक्लियस के इनसाइड हुण तुहानूं पता ना चार्ज काहदा करके होएगा न्यूक्लियस का प्रोटोन्स का करके ही होएगा क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 न्यूट्रल आ। हुण एक प्रोटोन ते कितना चार्ज होंदा ई ਆਪਾਂ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला फार्मूला लगाया n इंटू ई। हुण किन्ने प्रोटोन होंदे न्यूक्लियस के अंदर जिन्ना कि होंदा अपना एटॉमिक नंबर। ठीक है जी। Z एटॉमिक नंबर Z इंटू ई। ठीक है। चार्ज ऑन एटॉमिक इलैक्ट्रॉन। इलैक्ट्रॉन ते कितना चार्ज होएगा किन्ने इलैक्ट्रॉन होणगे जी न्यूट्रल एटम जिन्ना एटॉमिक नंबर है उन्ने इलैक्ट्रॉन होणगे। ठीक है जी। क्योंकि प्रोटोन इक्वल टू न्यूट्रॉन है न्यूट्रल एटम वास्ते माइनस Z ही हो जाएगा। ठीक है जी। माइनस साइन लै क्योंकि इलैक्ट्रॉन है। नैक्सट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखो ਇਹ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲਈਏ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਰੇਸ਼ੋ 1:2:3 ਬਟ ਜੈਮ ਚੈਡਵਿਕ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪਰ ਮਾਸ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ मतलब ये हम इतों नवे पार्टिकल की डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की। जेम्स चैडविक ने की किया जी एक ब्रिलियम न्यूक्लियर लिया उन्होंने किहदे बंबार्ड करवाया अल्फा पार्टिकल का बंबार्ड करवाता। जो बंबार्ड करवाया तो रेडिएशन समिट हुई जिन्होंने कहने आप न्यूट्रल रेडिएशनस। ठीक है। उन्हें देखा कि जिन्नी एनर्जी कोलिजन करवाने लिए चाहिए सी एह रेडिएशन की एनर्जी वो ज़्यादा आ रही है। ठीक है। फिर उतों डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की भी। ठीक है। भी ये इनसाइड जो न्यूक्लियर लिया आप ब्रिलियम का वो इनसाइड क्या है न्यूट्रॉन भी है। ठीक है जी। NCERT का एक प्रॉपर पैराग्राफ देता हूँ एक चंगी तरह पढ़ लेना। नैक्सट जो फ्री न्यूट्रॉन होंदा वो अनस्टेबल होंदा। ठीक है। कि कन्वर्ट हो जाता प्रोटोन प्लस इलैक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन ये आप समझावांगा मैं तुहानूं की होंदा। ठीक है। बीटा डिके दे विच इहदी लाइफ टाइम कितना होंदा 1000 सैकेंड। ठीक है। तो न्यूक्लियस के इनसाइड की होंदा स्टेबल जो न्यूक्लियस तो बाहर आता ये डिके हो जाता। ठीक है जी। नैक्सट आप करांगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किन्हों डिनोट करते हैं आप कैपिटल Z के नाल किहदे कोल होंदा नंबर ऑफ प्रोटोन्स ऑलवेज हमेशा जिन्ने नंबर ऑफ प्रोटोन होणगे जे तुहानूं कहण नंबर ऑफ प्रोटोन फाइंड करो तुहानूं एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है जी। इक्वल टू नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन भी होंदा पर उदों जो एटम न्यूट्रल आ जो आइन आ उदों नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स वो इक्वल नहीं होणगे एटॉमिक नंबर के। ठीक है जी। लगी समझ हमेशा तुसीं यह याद रखना ये मैं वैसे मैं लिखता ये उदों पॉसीबल है जो एटम न्यूट्रल आ वैसे ये हमेशा ट्रू है। ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन। नैक्सट इज मास नंबर किहदे कोल दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन जिन्ने प्रोटोन तो जिन्ने न्यूट्रॉन दोनों प्लस कर दो कि आ जाएगा मास नंबर से। ठीक है जी। सो इन्होंने कलैक्टिवली आप कह सकते नंबर ऑफ न्यूक्लियंस तुहानूं पता ही मैं दसिया प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन की होंदा न्यूक्लियन होंदा। हुण न्यूक्लियस का मास किहदे कोल होएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटोन। ठीक है जी। ਹੁਣ देखो एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटोन का नहीं जिन्ने भी वो एटम के प्रोटोन तो जिन्ने भी न्यूट्रॉन है उन्होंने मास सारिया का प्लस करांगे फिर क्या आ जाएगा अपने को मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है जी।
ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਨ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਆਈਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ, ਜ਼ੈਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, ਉੱਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੀ, ਆਈਸੋਟੋਪ। ਆਈਸੋਟੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਟਮਸ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੂਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੈਵ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਜੇ, ਸੇਮ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਸ ਨੰਬਰ। ठीक है, atoms of an element having same atomic number but different mass number। ठीक है, atomic number means number of neutron, atomic mass means number of इतना मास नंबर कर लेना। ठीक है, तुम मैं भी ठीक है पर मास नंबर कर लेना। ठीक, having atoms of an element having same number of having same atomic number but different mass number। ओके, एग्जाम्पल की है जिमें 1H1 1H2 1H3 ये आइसोटोप की है हाइड्रोजन के। हाँ देखो अटोमिक नंबर सेम आ, सेम एलीमेंट के एटम आ, सेम एलीमेंट के एटम। ठीक है, डाल्टन थ्योरी फेल हो गई ही ये करके, क्योंकि उन्हें कहा सारे एटम जोड़े होंगे एलीमेंट के सारे एटम के आइडेंटिकल होंगे मास वाइज भी साइज वाइज भी। ठीक है, जी पहली डाल्टन थ्योरी की। सो हाँ देखो मास नंबर डिफरेंट है ना, एटॉमिक नंबर सेम आ। ये ऑक्सीजन के अगे आइसोटोप, यह क्लोरीन के आइसोटोप ने दो। हम अगे है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास जिमें देखो तुम जिमें कोई मास दिता होगा ना, वो दसिया होएगा कि जिमें हाइड्रोजन इन्हों की परसेंटेज तुहानूं दित्ती होगी किन्ने किन्ने परसेंट है। ठीक है, कोई एलीमेंट आ वो किन्नी परसेंटेज पहले आइसोटोप की आ, सैकेंड की, तो थर्ड की किन्नी है। आ मास है पहले आइसोटोप का, M2 मास है सैकेंड आइसोटोप का, N1 है परसेंटेज पहले आइसोटोप की, N2 है परसेंटेज सैकेंड आइसोटोप की। देखो जिमें तुहानूं मैं कह दिना जी अपने कोल की है क्लोरीन एलीमेंट आ, किहड़ा है क्लोरीन, वो आइसोटोप जिहड़े है उन्होंने मास है 35 एंड 37 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जी लिख देना। पहले की कितनी परसेंटेज है 75%, सैकेंड कितने परसेंट है 25%। की आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई 75/100 प्लस 37 मल्टीप्लाई 25/100, ये आ जाए एवरेज एटॉमिक मास। नैक्सट हम देखो जोड़ा तो है अपना गोल्ड, और सिंबल कहता AU, एटॉमिक नंबर कहना 79। ये किन्ने आइसोटोप है 32 आइसोटोप है। कितों शुरू होंगे आ एटॉमिक मास, मास नंबर किन्ने तो लैके 173 तो 204 तक, देख लो 132 आइसोटोप आ। नैक्सट है आइसोबार। आइसोबार तुहानूं पता ही है की होंदे ने, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੇਮ ਅਟੋਮਿਕ ਸੇਮ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਮੀਨਸ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਨਸ। ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ੈਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਨਸ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट, जो एटॉमिक नंबर चेंज हो गया मतलब तुहाडा एलीमेंट बदल गया। ठीक है, हुण डिफरेंट एलीमेंट के एटम्स है ने, मतलब दो जोड़े अपने को होंगे ना एलीमेंट, वो डिफरेंट जोड़े एटम होंगे वो डिफरेंट एलीमेंट्स के होंगे। ठीक है, उन्होंने की आ हुण जो डिफरेंट एलीमेंट आ उन्होंने एटॉमिक नंबर जोड़ा वा वो की होएगा डिफरेंट होएगा, मास नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने कहेंगे आइसोबार। आ देखो जो 1H3, ठीक है, किहड़ा आइसोटोप है हाइड्रोजन की कहने आप ट्रीटियम कहने हैं, हीलियम, यह दोनों क्या है आइसोबार, यह दोनों की है, ये भी दोनों क्या है आइसोबार, क्योंकि इन्हों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट आ, मास नंबर सेम आ। नैक्सट है आइसोटोन। आइसोटोन वो होंगे ने डिफरेंट एलीमेंट के एटम्स होंगे ने जिन्हों के नंबर ऑफ न्यूट्रन के होंगे ने सेम होंगे ने। ठीक है, सो ये की होएगा तुहाडा A-Z मीनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये सेम होगा, मास नंबर भी डिफरेंट होएगा, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होएगा। जिवें आ मैं एग्जांपल लेना लिथियम की तो बरीलियम की, देखो
7 माइनस 3 4 न्यूट्रन आ गए, 8 माइनस 4 न्यूट्रन आ गए, ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रन होणगे। नैक्सट न्यूक्लीਅस बारे हम पढ़ीए, हम पहले पढ़ीए आप साइज की होंदा न्यूक्लीਅस का, किवें दा होंदा न्यूक्लीਅस का साइज नूं आपां मोस्टली आप इहनूं आपां कहने आ कि सफैरिकल कहने भी इहदी शेप की रहेगी सफैरिकल हैगी, बट उहदा प्रॉपर सफैरिकल शेप नहीं होंदी, ठीक है, 10% सफैरिकल शेप तो दूर होंदा है, ठीक है। हाँ जी, नैक्सट हैगा साइज, साइज मतलब रेडियस कितना होगा हुण न्यूक्लीਅस का। एक्सपैरीमेंटली डिटरमाइन किया गया, जिवें क्लोजडेस्ट अप्रोच वाला एक्सपैरीमेंट किया अल्फा स्कैटरिंग दे विच देखा गया क्लोजडेस्ट कितना डिस्टेंस ਸੀ 10⁻14 मीटर के लागे बने जा रहा है, ठीक है। देखो एक्सपैरीमेंटल की डिटरमाइन किया गया कि जो न्यूक्लीਅस का वॉल्यूम है कि डायरैक्टली प्रपोर्शनल है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन न्यूक्लीਅस। नंबर ऑफ न्यूक्लियन मीनस मास नंबर के डायरैक्टली प्रपोर्शनल, न्यूक्लियंस इक्वल टू मास नंबर होंदा ना, मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। उन्होंने देखा कि वॉल्यूम जो न्यूक्लीयस है कि डायरैक्टली प्रपोर्शनल है मास नंबर के। ਹੁਣ ਸਫੀਅਰ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਦਾ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ, ਆਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਏ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਟਾਤਾ, ਆਰ ਕਿਊਬ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਊਬ ਹਟਾਇਆ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲਿਟੀ ਸਾਈਨ ਹਟਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਰ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਆਰ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ 1.2 × 10⁻15 मीटर, ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਲਓਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਰ ਨੋਟ ਸੇਮ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਆਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਰਮੀ, ਐਫ ਫਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ +1 ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਰਮੀ 1 ਫਰਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦਾ 10⁻15 मीटर, ਓਕੇ 1.2 ਫਰਮੀ ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਆਰ ਨੋਟ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ, ਆਰ ਕੀ ਹੈਗਾ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। नैक्सट ही है स्टूडेंट्स, हम देखो सारे जो न्यूक्लियाई है अलग अलग एटम्स के उन्होंने रेडियाई डिफरेंट होंगे, ठीक है जी। नैक्सट है न्यूक्लीयर डेंसिटी, हम न्यूक्लीयस की डेंसिटी आप फाइंड करिए कि होगी डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होंदा ना, मास ऑफ न्यूक्लियस लवांगे तो वॉल्यूम कि न्यूक्लियस का लवांगे। हुण मास ऑफ न्यूक्लियस कि होगा जिन्ने न्यूक्लियस के विच है प्रोटोन उन्हों का मास प्लस जिन्ने है अपने कोल न्यूट्रॉन उन्हों का मास, प्रोटोन तो न्यूट्रॉन जिन्ने भी है न्यूक्लियस के इनसाइड सारे के मास को प्लस कर देंगे, अपने को आ जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है जी। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटोन्स। हुण वॉल्यूम कि होगा न्यूक्लियस का 4/3 पाई आर क्यूब। हुण देखो जिहड़ा प्रोटोन तो न्यूट्रॉन आ उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली मास की होंदा इक्वल होंदा, हाँ मैं लिखा ना देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटोन, सॉरी प्रोटोन, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ अपने कोल प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन किन्ने होणगे, हुण किन्ने होणगे तुसीं मैनूं दसो। अटोमिक मास नंबर तुसीं पढ़िया, मास नंबर किहदे कोल होंदा नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो प्रोटोन नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किहदे कोल होणगे कैपीटल ए दे, मतलब मास नंबर दे इक्वल, ठीक आ। इन्ने होणगे तुहाडे कोल प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन। हुण एक दा मास किन्ना आपां कंसीडर कीता इक्वल टू एम, क्योंकि प्रोटोन ते न्यूट्रॉन दोनों दा मास अप्रॉक्सीमेटली सेम है। टोटल मास किन्ना हो गया अटोमिक मास नंबर मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटोन या न्यूट्रॉन, ठीक आ, क्योंकि दोनों का अप्रॉक्सीमेटली सेम तां लिया 4/3 पाई। हुण आर की वैल्यू पुट करती आर नॉट ए की पावर 1/3 वो की आ क्यूब, ठीक है जी। हुण आपां की करांगे इत्थे वैल्यू पुट करती आपां कितना मास हुंदा प्रोटोन या न्यूट्रॉन का सेम ही हुंदा 1.66 × 10⁻27 बाय 4/3 पाई कितना 3.14, ठीक आ। इनू जो सॉल्व किया ना इत्थे आर क्यूब आ जाना तो आ ए आ जाना, ठीक है, वो कट्टिया जाना ए कट्टिया जाना आर नॉट दी क्यूब करता कितनी आएगी डेंसिटी 2.29 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हुण ये जी डेंसिटी है ना भावें जिहड़ा मर्जी एटम होवे, ठीक आ, भावें हाइड्रोजन का एटम होवे कार्बन का होवे यूरेनियम का होवे कोई भी एटम होवे सारियां दे जिहड़े न्यूक्लियस की जिहड़ी डेंसिटी आ वो की हैगी आ सेम कितनी आ 2.29 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो कुछ पॉइंट करते हैं आप न्यूक्लियर डेंसिटी बारे। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ये मास नंबर तो इंडिपेंडेंट,
ठीक है, किसी मास नंबर से डिपेंड नहीं करती, कोई भी एलीमेंट हो सारे एलीमेंट के उन्होंने न्यूक्लीयस की डेंसिटी की है सेम आए, ये चंगी तरह याद रखना। इट इज़ सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एटम, जिन्ने भी एटम आ सारिਆਂ ਦੇ न्यूक्लियाई सारे जिन्ने भी हैगे जिन्ने भी एटम आ कोई भी एटम लै लो सारिਆਂ ਦੇ न्यूक्लियाई ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ डेंसिटी ਕੀ ਹੋਊਗੀ सेम होगी, ਇੰਨੀ आएगी ਤੁਹਾਡੀ हमेशा। नैक्सट न्यूक्लियर डेंसिटी इज 10⁻14 टाइम्स मोर दैन डैट ऑफ वाटर। वाटर की कितनी डेंसिटी होती 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ कितनी ज़्यादा वा ਇਹਦੀ न्यूक्लियस की डेंसिटी 10⁻14, इन्नी ज़्यादा डेंसिटी है ਇਹਦੀ न्यूक्लियस की। नैक्सट देखो नूमेरिकल है एक, ਤੁਹਾਨੂੰ मास ऑफ आयरन द न्यूक्लियस गिवन आ 55.85 एटॉमिक मास यूनिट, ਉਹਦਾ मास नंबर भी गिवन आ 56, ਤੁਸੀਂ फाइंड करनी है न्यूक्लियर डेंसिटी। और डेंसिटी किहदे कोल होंदी है, सिंपल फार्मूला लगाना मास ऑफ न्यूक्लियस ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, उसी तरह आर की वैल्यू पुट करके आर इक्वल टू आर नॉट क्यूब होंदा ना, आर नॉट ए डी पावर 1/3 इतने पुट करके आर नॉट की वैल्यू पता तुहानूं, ए की वैल्यू आ मैं लिखता इतने, ठीक है, इनू चंगी तरह कर लैना। तो यह न्यूक्लियस तुहाडा न्यूक्लियस का मास दिता वा डायरैक्ट, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट जिन्होंने किलोग्राम कन्वर्ट कर लेना, तुहानूं पता ना 1 एटॉमिक मास यूनिट किहदे कोल होंदा 1.66 × 10⁻27, इनू आपां किलोग्राम पर मीटर क्यूब च फाइंड करना ऐसा यूनिट दे विच। सो आ देखो कैलकुलेट किया वैल्यू सेम आ गई, ठीक है, मैं यो तुहानूं समझा रहा ही, वैल्यू सेम आनी हमेशा, इन्नी वैल्यू ही आएगी जो डेंसिटी कैलकुलेट करोगे किसी भी एटम के न्यूक्लियस की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।